So may I start? Yes, you can start. Okay. Good morning, everyone. Firstly, I would like to welcome Dr. J.D. Gupta, Director cum Principal of ISF College of Pharmacy, and our today's guest speaker, Mrs. Rashmi Pandey, Founder and Industry Expert, SSCRI, OPC Private Limited, from more than 15 years. Dr. Khargaraj Aaron, Head of Department of Pharmacy Practice, Dr. Saurabh Kaushik, Head of Department of PharmD, and other HODs, all staff members and students present here. We are gathered here for the guest lecture on Beyond the Lab Coat Exploring Careers in Clinical Research by Mrs. Rashmi Pandey. She is training and clinical research professional with over 13 years of experience in clinical data management, clinical operations, document management, learning and development across top MNCs like Accenture, Cognizant, TCS, and Inventive Health. Recognized for delivering impactful training program, audit readiness, and cross-functional collaboration in the clinical research industry. So now I would like to invite Dr. G.D. Gupta to express his views on today's topic. Please, sir. Thank you very much, madam. So, good morning, everyone. So, on behalf of ISF College of Pharmacy, Department of the Pharmacy Practice, IQAC, I welcome you, madam. Madam Rasmi Pandeji. So, she is the founder and industry expert. So, welcome you, madam, at ISF College of Pharmacy. And during the telephonic talk, I have come to know so many things about you, and you have also sent the detail related to what types of the opportunity you can provide to the students, and you have select the title. This is also very excellent behind the lab code. Obviously, most probably we are the working in the lab, and number of days, number of the year we have devoted in the lab. What we need to behind of the lab code, what is the things is the required of our industry in hospital and healthcare profession, and what we have learned after the bearing of the lab coat, so how we can implement each and everything in the society. So obviously today's talk, it will be the very fruitful to each and everyone. Madam, this institute was established in 1984 as a diploma in pharmacy. Presently we are the running VFARM program, PharmD PB, and 9 branches of the M-Farm. This is the only institute in the North India running M-Farm in the 9 branches, and most probably we have the all pharmacy program related to the Pharmacy Council of India. This institute is the autonomous NAC accredited A grade college, and we have achieved the rank 25th in 2024 in the NRIF. Our student, they have the placed in the abroad as well as the various places of the India. 22 state student, they are the studying over here, and your contribution, your involvement for the development of the skill and development of the practical knowledge, and overall development of the student, it will be the helpful to me. After the talk we can discuss in the detail, so that we can develop the culture in our student also, related to the how we can explore the career in the various field, and especially in the clinical field of the pharmacies India as well as the abroad. So your guidance and your advice, it will be the fruitful to the each and everyone. So thank you very much today's coordinator Dr. Khadagraj ji for provide this opportunity to interact such types of the dedicated speaker, those who are the direct involved in the, you can say, commercial life of the activity and application of the student in the profession. So again, I welcome from core of my hearts, and this program is the recorded as well as available on the YouTube. So I hope that number of the student, those who are the direct connect with the ISF College of Pharmacy, as well as those who can listen or can they can we watch the program on the YouTube channel. So thank you very much. Without taking time, over to Shreya Sharma. She is the doing the good job. So thank you very much, Shreya ji, for the excellent job role, organizing of the webinar as well as our guest lecture. Thank you very much and welcome you all.
Thank you so much, sir. So, without wasting much time, I would like to invite you, ma'am, and please start with your lecture. Sure. Uh, Thank you so much, Shreya, for giving a brief intro about me. And thank you, uh, GD Gupta sir, that to bring me here and to help your students to understand that what all opportunities they can get after finishing their BPharm courses. This will really help them to understand that yes, we have something even beyond the lab coat, and that's the reason we have today's topic, beyond the lab coat thing. So everybody thinks that when we hear about research, it is always that will come in their mind is the lab coat. Somebody who is wearing a lab coat means he's a researcher, he's a doctor, or he's someone who is from the medical field. But no, uh, even if you see someone like this, is someone who is a researcher. Can you see this photo? So someone who, when we are studying, we think someone who is like this is a researcher, but no, even someone wearing a coat and working in a corporate environment, even that person is a researcher, clinical researcher. So not all scientists wear a lab coat. Always there is a scope of innovation, there is a scope of improvement. And when you talk about pharmacy is dealing with only with medicines, right? Drugs, medicines, and diseases. So we need to understand that not only in labs we can do something, we can even do beyond it. Now before I proceed with the, just a second, I will go to the next slide. I know, Shreya, that you have introduced me, but just let me give me, a background of me from where I started. Okay, so this is something that I write in the CV, and it is like a professional thing. But my story starts from when I finished my BSc in MLT, and I started. I was also one of them that who started the career with the lab. I was working in a lab, and then somebody, who was working there from last 20-25 years, they helped us to move out of that lab and saying that, please go and upskill yourself. And that's the time when I was searching for certain courses. I finished my this PG diploma in clinical research, and then I got a job, and then I moved into the clinical research industry in 2010. And that's my history. You can see that I've worked with multiple MNCs. By God's grace, that it's always been the MNC good companies like TCS, CNews, and Cognizant and Accenture. Right now also I'm working on certain projects which are delivered by CROs. I'm working as a QA consultant there. uh, so guys, if you have any questions, if somebody of if any one of you feels that you cannot ask a question, you cannot unmute yourself, but you want to ask a question, please put it in the chat box so that we can answer your questions later at any point of time. So after seeing this particular slide, what can you feel? Did you all had any kind of questions like this in your mind anytime? Because in India we are tend to pop up medicines like we are having a lunch or a dinner. हमें कुछ भी होता है, हम सोचते हैं कि चलो एक मेडिसिन खा लो एंड हम ठीक हो जाएंगे, राइट? सर्दी खांसी होती है, वी डोंट वेट, इवन वी आर फ्रॉम लाइफ साइंसेज बैकग्राउंड, वी फील कि हमें बहुत जल्दी से ठीक होना है. हम क्या करते हैं, फटाफट जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं एंड मुंह में डाल लेते हैं. बट क्या हम कभी ये सोचते हैं कि ये ट्रीटमेंट सेफ है या नहीं है? क्या ये वर्क करेगा मुझ पर या नहीं करेगा, और क्या इसके साइड इफेक्ट्स रहेंगे? एम आई करेक्ट? कभी आया दिमाग में ऐसे खाते वक्त medicine? I think not most of them will have these questions in their mind. They will just, because 100% each and everybody thinking about it. But मैडम के जैसे लेटेस्ट कंसीडर, हमारी मिसेज हमेशा ही ये कहती हैं कि यू आर इटसेल्फ ए फार्मासिस्ट, कितनी दवाई खाना चाहते हो, एक ही दिन में आपका कफ कोल्ड कैसे ठीक हो जाएगा? exactly. क्योंकि आज की डेट में जो जैसा व्हाट आई एम फीलिंग लाइक दैट,
कि व्यक्ति ऑफिस और ये चाहता है कि दवा लेकर के जल्दी ठीक हो जाए, बट आफ्टर विड्रॉल सिम्टम या उसकी क्या टॉक्सिसिटी होगी उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो ये बहुत बड़ा काउंसलिंग का विषय है। और अभी भी हम 1-2 दिन पहले ही बातचीत कर रहे थे कि नाउअडेज जिस तरह से हम किराने की पर्ची बनाते हैं, ऐसे आजकल दवाइयों की पर्ची बनाने लगे। मतलब ये प्रॉब्लम, मतलब एक छोटी छोटी चीजें कि ये भी रखी होनी चाहिए, ये भी रखी होनी चाहिए, ये भी रखी होनी, आफ्टर दैट दे आर एक्सपायर, तो उनका क्या करें? फिर हम उनको एनवायरनमेंट तक भेज देते हैं। तो आपका वाजिब क्वेश्चन है, और नो डाउट मोस्ट प्रॉब्ली पर्सन दे आर नॉट अवेयर, और सोचते नहीं है, बस खरीद लेते हैं और बस खाना चालू कर देते हैं। एग्जैक्टली सर खाना शुरू तो कर देते हैं, उसके बाद में ये भी नहीं पता होता, मतलब जैसे हम एक बार खाएंगे, हर किसी को लगता है कि बस मैं दोपहर तक अभी ठीक हो जाऊंगी या मैं ठीक हो जाऊंगा, रात तक ठीक हो जाऊंगा। और अगर जो हम रात तक ठीक नहीं होते हैं तो हम अगले दिन भी जाकर नया डॉक्टर के पास जाएंगे और नई मेडिसिन खाएंगे। तो हम वो तक करते हैं क्योंकि हमें जल्दी से ठीक होना है, बट विच इज रियली नॉट नेसेसरी गाइस। एवरी ड्रग हैज अ पर्टिकुलर वे ऑफ वर्किंग। अब ये ट्रीटमेंट सेफ है या नहीं, सेफ रखने के लिए ही वी हैव क्लिनिकल ट्रायल्स। नाउ ड्यूरिंग कोविड पीरियड आप लोग ने देखा होगा हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, राइट? हमारे पास कोई भी दवाई नहीं थी, ना हमारे पास ड्रग था प्रिवेंटिव मेजर के लिए, ना हमारे पास वैक्सीन थे। बट इन दैट पर्टिकुलर 3 to 4 months सारी फार्मा कंपनीज ने क्या किया, बैक टू बैक क्लिनिकल ट्रायल्स कर करके उन्होंने 4 months में वी गॉट द वैक्सीन इन द मार्केट, राइट, विच वाज कंसिडर्ड टू बी सेफ। अच्छा, एनीबडी ऑफ यू नोज कि एक पर्टिकुलर दवाई को मार्केट में आने के लिए कितना टाइम लगता है? अगर जो पूरा स्टार्टिंग से अगर जो किसी फार्मा कंपनी को लाना है एक दवाई को, मतलब केमिस्ट तक, तो कितना टाइम लगेगा? It takes around 10 to 15 years. 10 to 15 years ऑफ टाइम। अगर एक दवाई को हम दवाई की बात करें, वैक्सीन की तो बात कर ही नहीं रहे, एटलीस्ट मिनिमम 10 years, very correctly said Swami, minimum of 10 years, but yes it can extend up to 15 years। एंड वो 15 साल अगर जो एक दवाई को लाने, तो हमारा वैक्सीन आप सोच लो कि हमें 3 महीने में मिला है। वी आर टॉकिंग अबाउट वैक्सीन। अब जाकर हमें उसके साइड इफेक्ट्स पता चल रहे हैं कि मतलब कार्डियक अरेस्ट और ये सब चीज हो रहे हैं पेशेंट्स में ना। जिन्होंने भी हमारी कोविशील्ड और ये वैक्सीन ली हुई है उनमें अभी साइड इफेक्ट्स मिल रहे हैं, और उसको फिर अभी हमें बोला जाने वाला है कि फिर से वैक्सीन हम 3rd डोज लेंगे या नई वैक्सीन वापस से लेंगे इसके लिए, कोरोना के लिए। दूसरी चीज, हमने क्या कर दिया, दवाइयां खा खा के हमने सारे बैक्टीरियाज और इसको रेजिस्टेंट कर दिया है। तो दवाइयां वर्क करेंगी नहीं, बिकॉज देर आर मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरसेस दैट वी आर हैविंग नाउअडेज। तो हमारा क्लिनिकल रिसर्च यहाँ क्या रोल प्ले करता है? जब हम क्लिनिकल रिसर्च करते हैं, हम एक बहुत ही बड़ा एक सेंसिटिव एनवायरनमेंट रखते हैं वेयर वी मेक श्योर कि जो भी हमारा ड्रग ह्यूमंस में आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी सेफ एंड इफेक्टिव। अब यहाँ पर क्लिनिकल रिसर्च ना बैकबोन है हमारे फार्मा कंपनी का। अगर जो क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करेंगे, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज कभी भी हमें परमिशन नहीं देने वाली है कि उसे केमिस्ट तक हम ले जा पाए। हमारे इंडिया का रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? आई एम आस्किंग ऑल दिस क्वेश्चंस बिकॉज यू ऑल आर फ्रॉम बी फार्म। CDSCO, right? Drug controller, right? CDSCO, right? So we have DCGI who approves the drug in India. Same ways in all other countries, we have some other regulatory authorities doing that particular job, and we have certain guidelines like ICH GCP, which we follow. वो बहुत ही स्टैंडर्ड गाइडलाइन है। अभी हमारा वर्जन 3 रिलीज हुआ था लास्ट ईयर। अभी 3 वेरिएशंस आ गए हैं उसमें, एंड अभी जिस वे से हमारा क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री वर्क कर रहा है, इसमें बहुत सारे डिजिटल एलिमेंट भी ऐड हो रहे हैं। वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर यूजिंग ब्लॉकचेन, वी आर यूजिंग डेटा साइंस। तो क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में भी ये सारी चीजें आ रही हैं। तो हमारे क्लिनिकल ट्रायल से हमें क्या हेल्प होने वाला है? नई दवाइयां मिल सकती हैं फॉर डिटेक्शन, ताकि हमें कोई बीमारी डिटेक्ट करने के लिए हमें यूज हो सके, डायग्नोज कर सके, ट्रीटमेंट के लिए यूज हो सके, और प्रिवेंटिव मेजर के लिए हमारे पास जैसे कि हमारा वैक्सीन होता है वो आ सके।
So it is really important that clinical trials are done, and then only based on the data, regulatory authorities will give you permission to take it ahead for marketing. Now, जब हम clinical research की बात करें, we have total 4 phases: phase 1, 2, 3 and 4. अब phase 1 से पहले ना, we have basic research that is being done by pharma companies. वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं अब एक कोई मेडिसिन जो होता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ एक ही इंडिकेशन पे काम करे. चाहे ऑब्वियसली ऑन रिसर्च पेपर्स इट इज ओनली वन मेडिसिन वर्किंग ऑन पर्टिकुलर इंडिकेशन, बट नॉट नेसेसरी कि वो उसके लिए काम हो. वो किसी और इंडिकेशन के लिए भी कभी कभी हेल्पफुल हो जाता है. तो बेसिक रिसर्च में फार्मा कंपनीज क्या करती हैं कि वो देखती हैं कि कौन सा केमिकल कंपाउंड कौन से पर्टिकुलर डिजीज में हमें वो एक्ट करने वाला है और हमें बेनिफिट देगा. फिर जैसे जैसे ड्रग डिस्कवरी होती है, नाउ दिस इज टोटली प्योर लैब थिंग दैट इज बीइंग डन. यहाँ पर कहीं पर भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है. तो जब ड्रग डिस्कवरी होती है तो उनके पास ना कम से कम 15 से 20 हजार अलग केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जहां पर वो बोलते हैं कि हाँ ये इतने सारे कंपाउंड्स हैं जो मुझे इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए हेल्प करने वाली है. अब मान लो कोरोना वायरस का ही लूं मैं केस, तो उसमें क्या हो रहा था, हमारे लंग्स इम्पैक्ट हो रहे थे, राइट. लंग्स इम्पैक्ट हो रहे थे, तो वी नो कि हमारा टारगेट ऑर्गन लंग्स होने वाला है. तो ड्रग डिस्कवरी में उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग चीजें चेक की होंगी. पहले तो मेडिसिन भी निकालने के लिए ट्राई किया होगा फॉर श्योर. वैक्सीन तो उनका शायद से बात का प्लान हो, बट देन मेडिसिन बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे केमिकल कंपाउंड चेक किए होंगे, एंड वेयर दे नो कि हाँ टारगेट ऑर्गन इज लंग्स, वो उस पर इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वर्क करेगा कि नहीं करेगा. जैसे ही उनको फिल्टर करके 15,000 20,000 ड्रग में से एक अराउंड 100-200 ड्रग मिलेंगे कि हाँ ये वर्क कर रहे थे, सबसे बेस्ट रिजल्ट्स दिए इन्होंने, उनको टेक इट अहेड करके वो लोग क्या करेंगे, प्री क्लिनिकल स्टडीज. अब प्री क्लिनिकल स्टडीज क्या होती है, प्री मतलब पहले, क्लिनिकल मतलब ह्यूमंस. क्लिनिकल जहां वर्ड आप सुनोगे वहां पर मतलब कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है. अब प्री क्लिनिकल हम बोल रहे हैं मतलब ह्यूमन से पहले हम एनिमल स्टडीज करते हैं. एनिमल स्टडीज में क्या होता है, अब एनिमल्स भी ऐसे नहीं कि हम ऐसी नॉर्मल डॉग एंड कैट्स ले लेते हैं, राइट. वी टेक दोज एनिमल्स जिसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी सिमिलर टू ह्यूमंस. तो उससे क्या होगा, जब हम एनिमल टेस्टिंग करेंगे हमें डायरेक्टली उसकी टॉक्सिसिटी ह्यूमंस में नहीं टेस्ट करनी पड़ेगी. पहले हम देखेंगे कि वो ड्रग एनिमल्स में सेफ है या नहीं, कहीं एनिमल्स मर तो नहीं रहे खाने के बाद, या उनपे कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से हम ह्यूमंस में नहीं लेकर जा सकते. तो वो सारे के सारे 100-200 पहले लैब में एनिमल्स पे टेस्ट होते हैं. गिनी पिग हो गया उन सब पे एनिमल्स पे टेस्ट होने के बाद में वो लोग एक रिजल्ट पे आते हैं कि ठीक है, अब ये 4-5 ड्रग है जिन्होंने हमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखाया एनिमल्स में, अब हम इसे ह्यूमन ट्रायल में लेकर जा सकते हैं. अब ये जो प्री क्लिनिकल से जब हम शुरू करते हैं ना, ये सारा का सारा डेटा ना हमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सबमिट करना होता है फार्मा कंपनी को. ये डेटा रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सबमिट करती है फार्मा कंपनी, देती है, एंड फिर उनसे परमिशन मांगती है कि क्या अब हम क्लिनिकल ट्रायल, अब हम ह्यूमन टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं क्या. जैसे ही ह्यूमन टेस्टिंग शुरू होती है तो स्टार्ट होता है फेज 1 से. अगर आप यहाँ पर देखोगे ये फनल को, तो ये फनल कम होता जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक. तो यहाँ क्या हुआ था कि 4 से 5 ड्रग जो यहाँ मिले थे, अब वो टेस्टिंग में आए हैं यहाँ फेज 1 में, और धीरे 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 करके फेज 3 तक हमारे पास सिर्फ 1 या 2 ड्रग जो होते हैं जो अप्रूव होते हैं फाइनली फॉर मार्केटिंग पर्पस. अब यहाँ पर फेज 1 में जो 10s, 100s एंड 1000s आप देख रहे हो, तो नंबर ऑफ वॉलंटियर्स जो होते हैं, वॉलंटियर्स इज बेसिकली ह्यूमन बींग्स लाइक अस, जिनको हम सब्जेक्ट्स बोलते हैं या वॉलंटियर्स बोलते हैं क्लिनिकल रिसर्च टर्मिनोलॉजी में. तो नंबर ऑफ वॉलंटियर्स है ना, जो वो फेज 1 में बहुत कम लेते हैं, हम अराउंड 50 to 100. फेज 2 में हम लेते हैं समवेयर अराउंड 100 to 500 सब्जेक्ट्स, और फेज 3 में हम थाउजेंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स लेते हैं. अब जब मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं यहाँ पर, जब तक 50-100 सब्जेक्ट्स चाहिए तब तक तो यू कैन गेट इट फ्रॉम लोकल पीपल, और ये सब चीज से ही मिल सकती है. बट जैसे ही हम 100s और 1000s में आते हैं, क्योंकि हमारे क्लिनिकल रिसर्च में ना वी हैव अ सर्टेन डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज प्रोटोकॉल.
बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है जो क्रिएट होता है। प्रोटोकॉल में आपको वो रिसर्च में व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ अ क्लिनिकल रिसर्च विल बी कंडक्टेड वो आपको बताया जाता है। तो आपको जो आंसर चाहिए ना, क्लिनिकल रिसर्च कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, पेशेंट के साथ क्या क्या होने वाला है, एनालिसिस कैसे होगी, हम कौन सी ट्रीटमेंट कब देने वाले हैं, कौन कौन सी ट्रीटमेंट देने वाले हैं, कौन से टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए, वो सब चीज का डिटेल आपको प्रोटोकॉल में मिलेगा। तो जैसे ही हमारे पास प्रोटोकॉल आता है, प्रोटोकॉल में एक सेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब क्लिनिकल रिसर्च में ना ऐसा नहीं हो सकता कि हर सब्जेक्ट एलिजिबल है। जैसे हम 12th पास करते हैं, राइट, 12th पास करने के बाद में जब हम कॉलेजेस में अप्लाई करने जाते हैं तो हर कॉलेज का एक ये होता है, परसेंटेज होता है, राइट, कि इतने कट ऑफ पे ही वो ये वाले स्टूडेंट्स लेंगे। एलिजिबिलिटी होती है कि आपने अगर जो 12th साइंस किया है तो ही आप बीएससी कर सकते हो, अगर आपके इतने मार्क्स आए हैं तो ही आप ये कर सकते हो। देयर इज एलिजिबिलिटी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सेम वे जब हम ट्रायल करते हैं उसमें भी एलिजिबिलिटी होती है। मान लो कि जैसे कि बेसिक कि एज ऑफ द पेशेंट शुड बी 18 to 45 ईयर्स, एज ऑफ द पेशेंट शुड बी 18 to 35 ईयर्स। अगर वो एक दिन भी बड़ा निकला ना कि 35 से मान लो 35.1 डे हो गया, तो भी वो एलिजिबल नहीं होगा ट्रायल के लिए। सेम वे उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं कि अगर जो मैं डायबिटीज ट्रायल की बात करूं, अब डायबिटीज में उसमें दो नॉट ओनली इन डायबिटीज बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 सेक्शंस होते हैं, एक इंक्लूजन एक एक्सक्लूजन। इंक्लूजन मतलब जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम सब्जेक्ट को लेंगे, और एक्सक्लूजन मतलब अगर ये सारी चीज इसमें अगर जो पेशेंट में हमें दिखती है तो पेशेंट एनरोल नहीं हो पाएगा। तो वो क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं एंड उसके बेसिस पे ही सब्जेक्ट आएंगे। अब मैंने आपको ये पूरा क्राइटेरिया क्यों बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि पेशेंट मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम बहुत सारे क्राइटेरियाज रखेंगे। नॉर्मली अगर जो मैं जाऊं अगर और डायबिटीज ट्रायल कहीं चल रहा है और डायबिटिक पेशेंट जाए तो डॉक्टर के लिए बहुत ईजी है कि हाँ ये डायबिटिक पेशेंट है और इसको हम ले लेते हैं ट्रायल में। बट जहां पर क्राइटेरियाज आ गए, जहां पर हमें ये देखना है कि कहीं उसको पहले मतलब कहीं हार्ट डिजीज तो नहीं थी, कहीं उसका किडनी स्टोन का ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, क्या इसकी एज इतनी से इतने ही है, ना, जहां पर वो क्राइटेरियाज आएंगे वहां पर डॉक्टर्स को डिफिकल्टी होती है पेशेंट को एनरोल करने के लिए ट्रायल में। एंड सबसे मेजर रीजन कि ट्रायल्स एक्सटेंड होते हैं इतने इतने सालों के लिए, मेजर रीजन ही ये होता है कि उन्हें पेशेंट्स नहीं मिलते, सब्जेक्ट्स नहीं मिलते। अब जैसे ही सब्जेक्ट मिलते हैं तो फेज 2 फेज 3 में आके इतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमें चाहिए होते हैं कि हमें ट्रायल ग्लोबली करते हैं। ग्लोबली मतलब कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं चलेगा, इट विल बी थ्रू आउट यूरोपियन रीजन, इट विल बी थ्रू आउट यूएस, चाइना, जो भी कंट्रीज में उन्हें पता है कि ये पर्टिकुलर डिजीज देखी जाती है, पाई जाती है। अब डिजीज भी हमें पता है कि सारे मतलब सारे कंट्रीज में सारे जगहों पे वो डिजीज प्रिवेलेंट नहीं होती है, राइट। देयर आर सर्टन एरियाज, बहुत ही स्ट्रिक्ट एरियाज होते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर डिजीज इस एरिया में ज्यादा पाई जाएगी, तो वो उस वे से वो डॉक्टर सिलेक्ट करते हैं कि हाँ यहाँ से हमें पेशेंट मिलेंगे। तो फेज 2 फेज 3 तक जाने तक ये ट्रायल ग्लोबल हो जाती है। यहाँ पर हम बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं कि ड्रग इंटरैक्शन है या नहीं है, ड्रग फूड इंटरैक्शन है या नहीं है, मतलब पीके क्या है, योर फार्माकोकाइनेटिक डेटा की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन कैसा रहेगा, हाफ लाइफ क्या है ड्रग की, कितने टाइम तक वो हमारे बॉडी में रहेगा, मैक्सिमम डोज क्या दे सकते हैं, मिनिमम डोज क्या दे सकते हैं ड्रग में ना। तो ये सारा का सारा डेटा आपकी क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू ही आता है। आप लोगों ने कभी ये देखा है कि नॉर्मल आप जब कोई मेडिसिन लेकर आते हो और जिसका बॉक्स अवेलेबल होता है आपके साथ में, उसके अंदर एक व्हाइट या पिंक कलर का पैम्पलेट होता है छोटा सा, खोल के देखा है आप लोगों ने कभी वो क्या होता है, उसमें क्या होता है? बहुत लंबा चौड़ा सा, इतना लंबा सा पतला सा पेपर होता है, बट देन इट इज वेरी लेंथी। सो इट बेसिकली इज योर सेफ्टी डेटा विच इज प्रेजेंट इनटू इट। कौन से ट्रायल्स हुए हैं, कब हुए हैं, क्या डेटा था, कौन से साइड इफेक्ट्स आपको इस ड्रग से मिलेंगे, अगर कुछ आप इतने डोज से ऊपर लोगे तो आपको डॉक्टर को मतलब तुरंत कांटेक्ट करना है।
पर हम क्या करते हैं, वो बॉक्स में से निकाल के फेंक देते हैं उसे। तो वो जो पैकेज इंसर्ट है वो डेटा बेसिकली हमारे क्लिनिकल ट्रायल से ही आया हुआ है। वो पूरा पूरा डेटा इंफॉर्मेशन वहीं से आया है। एंड it is mandatory for every pharma company to put that important information into that packaging so that publicly वो available हो। अब ये फेज 3 तक तो ठीक था। फेज 3 जैसे ही हुई ना, तो फेज 3 के बाद तो मार्केटिंग अप्रूवल चाहिए होता है। फिर हमें फार्मा कंपनीज मार्केटिंग अप्रूवल मांगती है कि हाँ अब मेरा डेटा ये सेफ है, इफेक्टिव है, ये मेरा एविडेंस है, ये पूरा पेशेंट डेटा है मेरे पास में, उससे एक ड्रग अप्रूव हो गई। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो ड्रग अप्रूव होती है, अब फार्मा कंपनी ने पहले टाइम ये ड्रग नहीं लेकर आया, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी कोई कोई अदर फार्मा कंपनीज हैं जिनके पास सेम ड्रग है, मतलब रिलेटेड टू सेम पर्टिकुलर डिजीज। तो वो क्या करते हैं, सेम डिजीज का मेडिसिन अगर उन्हें लगता है कि हमारा ड्रग अब बिक नहीं रहा, यू नो देयर इज अ कंपटीशन, की कोई और कंपटीशन है जिसका ड्रग ज्यादा बिक रहा है और हमारा नहीं बिक रहा, तो अब हम फेज 4 ट्रायल करेंगे, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल। मार्केटिंग के बाद पोस्ट मार्केटिंग। अब पोस्ट मार्केटिंग जैसी ही होती है ट्रायल की, वहां पर वो लोग कंपेयर करते हैं अपने कॉम्पिटिटिव ड्रग से। वो देखते हैं कि उनका ड्रग में ऐसा क्या डिफरेंट है कि ज्यादा सेलिंग है और क्या फायदे हो रहे हैं। और जैसे ही वो उनके साथ में कंपेयर करते हैं ड्रग, देखते हैं कि किसका ज्यादा बेटर है किसका नहीं है, वो डेटा से वो लोग क्या करते हैं, अगेन रीलॉन्च करते हैं अपना प्रोडक्ट, सेइंग कि इट इज अ इम्प्रूवाइज्ड वर्जन, इट इज अ एडवांस फॉर्मूला। हमने देखा होगा राइट, एड्स में देखते हैं कि एडवांस फॉर्मूला है, इसमें अभी हमने तुलसी भी ऐड कर दी, ये भी ऐड कर दिया, अभी इससे ज्यादा बेटर होगा। दैट इज कि उसका लॉन्च हो चुका था, पहले इतना बिक नहीं रहा था, तो उन्होंने फिर से रीलॉन्च किया, एडिंग few more things into it, relaunching it with good उसका मतलब पूरा पैकेजिंग एंड एवरीथिंग, एंड फिर वो फेज 4 ट्रायल होता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव? ओके, नाउ जो हमारा डिमांड है क्लिनिकल रिसर्च में गाइस, इट इज ओनली गोइंग टू गेट इंक्रीज। अब आप देखोगे कि अभी फिर से कोविड वायरस आ गया, राइट? गुड़गांव और ये सब साइड में अभी फिर से नए केसेस मिले थे। तो पहले तो क्लिनिकल ट्रायल, ग्लोबलाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल होते हैं आजकल, इट्स नॉट ओनली इन सिंगल कंट्री। नए टेक्नोलॉजीज मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस सब आ रहा है। डिजीज वेरिएंट बहुत आ रहे हैं। जब हमें कोविड ही हुआ था उसके बाद में भी हमने देखा था कि हमारा वायरस वो इतना रेजिस्टेंट था कि वो अपना स्ट्रक्चर बार बार चेंज कर रहा था, तो डिजीज चेंज होती जा रही थी, जिसके लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिजीज वेरिएंट और आते जाएंगे, और ये ग्रोइंग चीज है, तो ये ऐसा नहीं है कि कभी खत्म होने वाला है। और इस टाइम पे क्लिनिकल ट्रायल्स जब होते हैं तो उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी होते हैं जहाँ गवर्नमेंट हेल्प करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में। अगर आप देखोगे 2022 में ही $2.1 बिलियन की मार्केट थी, एंड गोइंग फॉरवर्ड इट इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज। So as per career it is going to be recession proof and there are no layoffs. कोविड टाइम पर आई थिंक जहाँ पर सबकी सैलरीज कट ऑफ हो रही थी और लोगों की जॉब जा रही थी, एक ये इंडस्ट्री थी जहाँ पर सिर्फ रिक्रूटमेंट हो रही थी। जहाँ हमारा एवरेज था, एक्सेंचर में थी मैं तब 2022 में, उस टाइम पे जहाँ पर हम महीने में 5 से 10 रिक्रूटमेंट करते थे हमारे सिंगल प्रोजेक्ट में, वहां पर हम कम से कम 25 से 30 रिक्रूटमेंट कर रहे थे एवरी मंथ। मैं अपने सिंगल प्रोजेक्ट की बात बता रही हूँ, एक्सेंचर में ऑल ओवर एक्सेंचर और भी रिक्रूटमेंट हो रही थी। तो ले ऑफ्स नहीं थे, इनफैक्ट इंक्रीमेंट था लोगों को, क्योंकि लोग ओवर टाइम भी कर रहे थे तो उनको वो पैसे भी मिल रहे थे, बट देन इट वाज प्रोजेक्ट से भरा हुआ था। तो कभी ले ऑफ्स नहीं होने वाली, कभी डिजीज भी आएगी तो रिमोट काम दे देंगे आपको कि आप घर से बैठ के करो, पर काम नहीं जाने वाला। नाउ ये क्लिनिकल रिसर्च करता कौन है, ठीक है? नाउ सबसे पहली चीज तो है फार्मा कंपनी।
हमारी फार्मा कंपनी का ड्रग होता है, राइट? हमेशा फार्मा कंपनी इसी ड्रग लेकर आती है। अब इसमें बहुत सारे लोग एक फार्मा कंपनी को हेल्प करते हैं, जैसे कि हो गए डॉक्टर्स। तो फार्मा कंपनी क्या करती है, सबसे पहले तो क्योंकि हमें पेशेंट चाहिए, पेशेंट हमें मिलेगा डॉक्टर्स के पास से, सो वी नीड डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को हम क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में इन्वेस्टिगेटर्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरी कंपनी जो होती है फार्मा कंपनी, हमेशा जरूरी नहीं है कि उनके पास में वो मैन पावर हो कि वो सारा काम कर सके। तो बहुत बार वो क्या करते हैं, अपना काम किसी और वेंडर को देते हैं। अब हमारी क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में बहुत सारे सीआरओज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो फार्मा कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं और उनको हेल्प करती हैं वो काम खत्म करने के लिए। थर्ड जो हो गया वो होती है एसएमओस। अब एसएमओस को फुल फॉर्म है साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन साइट को हेल्प करने के लिए बनी होती है। साइट मतलब कि हॉस्पिटल जहाँ डॉक्टर is present. Now doctor is present either in a hospital or they have their own private clinics. तो जहां पर डॉक्टर रहेगा, चाहे वो क्लिनिक हो या हॉस्पिटल हो, वहां पर वी हैव एसएमओस ना। तो वो डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं इन रनिंग देयर डे टू डे ऑपरेशंस ऑन अ स्मूथली, क्योंकि डॉक्टर्स के पास उतना टाइम नहीं है कि वो पेशेंट डेटा आपको डेटाबेस में प्रोवाइड करेंगे, डेटा एंट्री करेंगे, बाकी सारी चीजें वेरीफाई करेंगे। वो उनका काम सिर्फ पेशेंट लाना है, एंड बाकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वर्क होती है, दैट इज बिंग डन बाय अदर पीपल। तो वो अपना काम स्मूथ करने के लिए वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एसएमओस को दे देते हैं कि आप मेरी ये साइट को हैंडल करो। वॉट एवर प्रोजेक्ट्स आर रनिंग हियर, साइट कोऑर्डिनेटर ऑल्सो यू ब्रिंग, डेटाबेस हैंडलिंग भी आप करो, सब चीज आप करो, एंड दे गिव जस्ट मनी टू देम। देन वी हैव रेगुलेटरी अथॉरिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बिना क्लिनिकल ट्रायल अप्रूव ही नहीं होंगे या परमिशन ही नहीं मिलेगा कि हम क्लिनिकल ट्रायल कर सके। तो दे आर द वंस हु अप्रूव्स एंड दे ओवरसी द एंटायर क्लिनिकल ट्रायल। ऐसा नहीं होता कि एक बार परमिशन दे दी अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, तो उसके बाद में कोई चेक करने नहीं आता। Obviously there are regulatory inspections that happens, प्रॉपरली साइट पर जाते हैं, फार्मा कंपनीज की इसमें जाते हैं, सीआरओज में जाते हैं, एसएमओज में जाते हैं। दे गो फॉर एन इंस्पेक्शन एंड मेक श्योर कि जो भी रिसर्च रिलेटेड हमें जिस वे में वो रिसर्च कंडक्ट करना था वो उसी वे में हो रहा है। अब रेगुलेटरी अथॉरिटी तो बहुत बड़े लेवल पे, राइट, दे आर अप्रूविंग द ट्रायल्स ऑन अ बिगर लेवल, इंडिया लेवल, या कोई मतलब लोकल लेवल पे अप्रूवल नहीं दे रहे, वो लोग पूरे कंट्री लेवल पे अप्रूवल दे रहे हैं। सेम वे अब कंट्री लेवल के बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि कहीं पर मान लो गुजरात के किसी कोने में एक जगह क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है तो रेगुलेटरी अथॉरिटी हमेशा चेक रखेगा उसका। तो वहां पर एथिक्स कमिटी का काम आता है। There are ethics committee, registered ethics committee, who are registered by DCGI, that is our government of India, और even बाहर आउट ऑफ इंडिया भी, जहाँ पर अगर यूएस में हो, कनाडा में हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पर भी एथिक्स कमिटीज होती हैं। वो हॉस्पिटल या क्लिनिक के आसपास रहते हैं। जैसे ही इन्वेस्टिगेटर के पास कोई ऐसा क्लिनिकल ट्रायल आता है, प्रोजेक्ट आता है, उन्हें ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उस एथिक्स कमिटी को सबमिट करने होते हैं, एंड देन वो एथिक्स कमिटी उस डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करेगा, एंड देन वो लोग उसको परमिशन देंगे कि आप ये रिसर्च कर सकते हो कि नहीं। अब एथिक्स कमिटी जो रिव्यू कर रहा है ना, दे आर डूइंग इट ऑन अ लोकल लेवल, मेकिंग श्योर कि उनकी जो लोकल कम्युनिटी है, लोगों की पीपल, वो लोकल कम्युनिटी वाले जो लोग हैं वो लोग सेफ रहे। जो भी ट्रायल आ रहा है यहाँ पर वो उनकी बेनिफिट के लिए हो और ना कि साइड इफेक्ट्स भरे हों उसमें। तो एथिक्स कमेटी अपना इंश्योर करती है कि पेशेंट की सेफ्टी और राइट्स वेलबींग मेंटेन्ड है। यहाँ तक सब समझ में आ गया या कुछ कंफ्यूजन? Yes, ma'am, we understand. Thank you, Dr. Raj. So we have different teams, guys. ठीक है, अब हमारा रोल, जब हम बोलते हैं हम बी फार्म के लिए भी करियर अपॉर्चुनिटी है, बीएससी वालों के लिए भी करियर अपॉर्चुनिटी, तो क्या क्या डॉक्टर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है।
तो MBBS हो गए, नर्सिंग हो गई, बी फार्म हो गए, एम फार्म हो गए, BSc, MSc, anyone who is from life sciences background can come into the clinical research industry. We have sponsor जो हमारा फार्मा कंपनी होता है, because they give money to do the trials. They are the ones जिसका वो ड्रग है, वो पैसे दे रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, इसीलिए मेंस उनका नाम होता है क्लिनिकल रिसर्च में, हम उनको स्पॉन्सर बोलते हैं, स्पॉन्सर कंपनी। अब ये स्पॉन्सर कंपनी के या तो आपकी जॉब स्पॉन्सर कंपनी में लग जाए तो वेरी गुड कि आप क्लाइंट के पास ही सीधा लग गए हो, अदरवाइज आप इन्वेस्टिगेटर के पास में भी आपकी जॉब लग सकती है, दैट इज अंडर द डॉक्टर एज अ CRC, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। I told you कि clinical research coordinator is the one who will take the informed consent from the patient, will make sure कि उनका lab test proper time to time हो रहा है, documentation maintained है, database entry हुई है। ये जितना भी investigator की responsibility थी, सिवाय patient recruitment के, बाकी सारी responsibility CRC की हो जाती है। फिर आता है आपका CRA, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट रोल। ये रोल ट्रैवलिंग जॉब होती है इसमें। अब ये ट्रैवलिंग जब जॉब होती है आपकी, इसमें इनका काम क्या रहता है? अब मान लो हम किसी गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट बनाने जाते हैं, मान लो मैं गई हूँ पासपोर्ट बनाने। अब पासपोर्ट जब बनाने जाती हूँ और मैं उन्हें अपना आधार कार्ड सबमिट करूँ, फोटोकॉपी आधार कार्ड की, क्या उनके लिए वो इनफ होता है या वो हमसे ओरिजिनल भी मांगते हैं? डू दे आस्क फॉर द ओरिजिनल्स सारे डॉक्यूमेंट के? यस मैम। राइट, दे आस्क फॉर ओरिजिनल्स। सेम वे यहाँ पर जब हम पेशेंट डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हमें पेशेंट डेटा भी वेरीफाई करना जरूरी है। पहले के टाइम पे जब हमारे पास गाइडलाइंस नहीं थी, ये गाइडलाइंस ही आई इसलिए क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स थे वो बहुत ही फॉर्ज, मतलब डेटा, मान लो पेशेंट्स नहीं आए फिर भी उनके पास को पेशेंट डेटा होता था ना। तो ऐसी चीजें ना हो कि पेशेंट है ही नहीं और फिर भी वो डेटा सबमिट कर रहे हैं, इसीलिए CRA रोल आया। CRA इज 60 to 70% ट्रैवलिंग जॉब। CRAs क्या करते हैं, वो इन्वेस्टिगेटर साइट पे जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर होता है, एंड दे मेक श्योर कि पेशेंट का सारा इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। तो जहाँ पर पेशेंट डेटाबेस में एंट्री हो रही थी, वो डेटाबेस से कंपेयर करके ओरिजिनल के साथ में भी कंपेयर करते हैं, एंड दे कंपेयर करने के बाद में देखते हैं कि सही है कि नहीं है, एंट्री सही हुई है कि नहीं हुई है। मान लो कोई पेशेंट डेटा अवेलेबल नहीं होता तो वो पूछते हैं कि इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहाँ पर है। तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम बोलते हैं सोर्स डेटा वेरिफिकेशन, कि सोर्स क्या था डॉक्यूमेंटेशन का, कुछ तो सोर्स होगा जहाँ से उन्होंने एंट्री की है, या तो बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ एंटर किया है तो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, या स्कूल सर्टिफिकेट होगा जहाँ से डेट ऑफ बर्थ एंटर किया। तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने के लिए जाते हैं, साइट उतनी एलिजिबल है या नहीं है कि पेशेंट की डॉक्यूमेंट्स रखने की जगह मिल रही है उन्हें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशनल ड्रग जो है हमारा। अब जो हमारी जो मेडिसिन होती है ना, जब तक वो मार्केट में नहीं आई है, अप्रूव नहीं हुई है, उसको हम इन्वेस्टिगेशनल ड्रग बोलते हैं या इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट बोलते हैं, IMP या IP। तो इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल जो प्रोडक्ट होता है हमारा, वो प्रॉपर टेम्परेचर पे है या नहीं है, स्टोरेज पे है या नहीं, पेशेंट ने जो दवाइयाँ लेकर गए हैं उन्होंने वापस लाकर दिए या नहीं, जो बची हुई दवाइयाँ थी, वो पूरा का पूरा वेरीफाई करने का काम CRA करता है। दैट इज द CRA रोल। देन वी हैव फार्माकोविजिलेंस टीम। अब हम हमेशा पेशेंट सेफ्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लिनिकल रिसर्च में ना, सेफ्टी, पेशेंट सेफ होना चाहिए। तो सेफ्टी डेटा जो है ना, वो बेसिकली आपकी साइड इफेक्ट्स है, दैट इज योर सेफ्टी डेटा। पेशेंट को फीवर होता है, हमारा क्या पता हमारे ड्रग की वजह से हुआ हो, पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, मे बी हमारा साइड इफेक्ट हो ड्रग का, पेशेंट को नोजिया हुआ, मे बी साइड इफेक्ट हो ड्रग का ना। सो एवरी साइड इफेक्ट इज बीइंग डॉक्यूमेंटेड इन अ फॉर्म। इस साइड इफेक्ट, लेमैन टर्म में तो हम साइड इफेक्ट बोलते हैं, क्लिनिकल रिसर्च टर्म में हम उसे एडवर्स इवेंट बोलते हैं, एडवर्स इवेंट AE। जैसे ही एडवर्स इवेंट होता है,
उसे डॉक्यूमेंट करना होता है। एंड मान लो कि किसी को मान लो वॉमिटिंग हुआ, अब इतनी वॉमिटिंग हुई कि वॉमिटिंग की वजह से पेशेंट की डेथ हो गई या पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, तो उस दौरान वो पर्टिकुलर जो एडवर्स इवेंट है वो सीरियस एडवर्स इवेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि उससे सीरियस इम्पैक्ट हुआ है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया है। या मान लो वो पहले ही हॉस्पिटल में था जहां वो अगले दिन डिस्चार्ज होने वाला था, डिस्चार्ज होने की जगह पे उसका प्रोलॉन्गेशन हो गया ना, अब उसका एक्सटेंशन हो गया वो पर्टिकुलर हॉस्पिटलाइजेशन का। तो देर आर सर्टन क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे सीरियस एडवर्स इवेंट होते हैं। और ये जो सीरियस चीज होती है हॉस्पिटलाइजेशन की, डेथ की, या कुछ चीज लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, पेशेंट कोमा में चला जाता है, वो सारी चीजों को दो जगह डॉक्यूमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर दो टीम प्ले करती है रोल। एक तो आपकी हो गई ये डेटा मैनेजर्स वाली, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, एंड देन यू हैव सेफ्टी टीम, दैट इज योर फार्माकोविजिलेंस टीम। दो टीम है, ठीक है। अब फार्माकोविजिलेंस टीम क्या करती है? फार्माकोविजिलेंस, फार्माको मतलब ड्रग रिलेटेड, विजिलेंस मींस स्टेइंग अलर्ट कि ड्रग से रिलेटेड क्या सीरियस इम्पैक्ट हम देख रहे हैं पेशेंट्स में। तो साइट को बोला जाता है, स्पॉन्सर बोलता है कि जब भी आप ऐसा कोई केस देखोगे जहां पर आपका पेशेंट, जहां पर वो सब्जेक्ट हॉस्पिटलाइज हो गया या डेथ हो गई उसकी, वो केस को आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म में, एक सेफ्टी फॉर्म होता है जो उन्हें फिल करना होता है और फिर ये फार्माकोविजिलेंस को फार्माकोविजिलेंस टीम में भेजना होता है। तो फिर वो फार्माकोविजिलेंस टीम क्या करेगी? दे विल सेंड इट टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने भी टाइमलाइन बनाया होता है कि यस, अगर जो डेथ होती है यू हैव टू रिपोर्ट इट विद इन 24 आवर्स ऑफ टाइम। अगर जो आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग या कोई सीरियस कंडीशन होती है, यू हैव टू रिपोर्ट इट विद इन 14 कैलेंडर डेज। तो देयर इज अ सर्टेन टाइमलाइन जिसके अकॉर्डिंगली स्पॉन्सर फिर वो डेटा को आगे रेगुलेटरी अथॉरिटी को फॉरवर्ड करता है। बट यहाँ फार्माकोविजिलेंस टीम का क्या काम है? Just on the basis of SAE form, they will document that particular serious adverse event in the safety database. फिर वो safety database से क्या होगा? वो डेटा को वो लोग एनालाइज करेंगे कि ये पर्टिकुलर केस हुआ कैसे, जिसको हम बोलते हैं केस प्रोसेसिंग। केस को प्रोसेस करेंगे, देखेंगे कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट किसने किया, क्या उसकी किसी पेरेंट या किसी फ्रेंड ने या कॉलीग ने या आसपास के जाने वाले लोग ने ये पर्टिकुलर कंडीशन देखा कि वो बेहोश हो गया था और फिर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है उसका। दूसरी चीज वो लोग ये देखते हैं कि कौन से ड्रग की वजह से हुआ है, क्या वो ड्रग हमारा इन्वेस्टिगेशनल ड्रग था या वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन की वजह से, जो वो ड्रग पहले से ही ले रहे थे उसके वजह से कुछ ड्रग इंटरैक्शन हुआ है, इस वजह से ये चीज हुई है। तो वो प्रॉपर उसकी एनालिसिस होती है कि ये सीरियस एडवर्स इवेंट हमें किस वजह से देखने मिला। वो काम करती है फार्माकोविजिलेंस टीम। आप लोगों को तो ये फार्माकोविजिलेंस का एक टॉपिक है, राइट? और 3rd ईयर में या 4th ईयर में है शायद। आप लोग को कोई डाउट है फार्माकोविजिलेंस रिलेटेड, कुछ पूछना हो तो? नो डाउट मैम। ओके। अब फार्माकोविजिलेंस के पास में तो वो फॉर्म के थ्रू, ऐसे ही फॉर्म के थ्रू तो गया ही है डेटा। एट द सेम टाइम डेटाबेस, जो हमारा डेटाबेस है जहाँ पर पेशेंट डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हम, वहां पर भी एक और फॉर्म होता है, ऐसे ही फॉर्म। तो वहां पर भी डेटा एंट्री करनी होती है साइट को, जिसकी वजह से क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट टीम के पास आती है। यहाँ पर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट टीम क्या करती है? अब नाम क्या है? क्लिनिकल, क्लिनिकल मतलब ह्यूमन, राइट? डेटा मैनेजमेंट मतलब कि ह्यूमन का डेटा हमारे पास डॉक्टर्स के थ्रू आ रहा है, उसके लिए हमने क्या किया? एक डेटाबेस क्रिएट किया है। क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट टीम एक डेटाबेस क्रिएट करती है, इन्वेस्टिगेटर्स को देती है और बोलती है उनको सिखाती है कि डेटा एंट्री कैसे करनी है, कौन सी जगह पे हमें कैसा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, उनको ट्रेन करके प्रॉपरली फिर हम जैसे पेशेंट डेटा आने लगता है, डेटा मैनेजर्स का काम होता है उसको रिव्यू करना,
देखना कि एज पर द प्रोटोकॉल डेटा एंट्री ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। अब ये पूरे के पूरे ट्रायल में ना, चाहे वो 2 साल चले, 3 साल चले, 4 साल चले, इन सीडीएम का टीम का काम, सेफ्टी टीम का काम, सीआरए का काम, सबका एक एक चीज कॉमन है, वो है मेक श्योर करना कि पेशेंट डेटा जो हमारा है वो करेक्ट है। फॉल्स डेटा हम नहीं लेने वाले। पेशेंट डेटा है वो प्रॉपरली करेक्ट है, इट इज कमिंग फ्रॉम द राइट सोर्स, इट इज एज पर द प्रोटोकॉल, एंड डॉक्टर इज वेरीफाइंग इट, वैलिडेटिंग इट कि यस, कि डॉक्टर ने ये डेटा हमें प्रोवाइड किया है। अब इसके बीच बीच में भी ना बहुत सारी चीजें हम जो एक्टिविटीज करते हैं कि अग्रीमेंट साइन हो रहा है डॉक्टर्स के साथ में, बहुत सारी चीजें हम करते हैं इसके बीच में, वो चीज मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको ना। अब ये दोनों टीम ना, एडवर्स इवेंट डेटा तो हम कलेक्ट कर रहे हैं। एडवर्स इवेंट इज योर बेसिकली योर नॉसिया, योर फीवर, योर वॉमिटिंग। अब मान लो कि मुझे ये डेटा प्रेजेंट करना है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कि मैंने कितने नंबर ऑफ केसेस फीवर के देखे हैं। अब मैं जाऊं डॉक्टर के पास में, मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे हाई फीवर है, डॉक्टर ने एज इट इज मेंशन कर दिया हाई फीवर। श्रेया आप जाओ डॉक्टर के पास में, आप हाई फीवर की जगह पे आप बोल दो कि मुझे हाई टेम्परेचर है, उन्होंने हाई टेम्परेचर मेंशन कर दिया। कोई और थर्ड पर्सन जाएगा फीवर की जगह पे, वो बोल रहा है मुझे फीवर है, तो मैं, एक ने बोला फीवर है, दूसरे ने बोला हाई टेम्परेचर है, थर्ड ने बोल दिया हाई फीवर है। क्या ये तीनों चीज एक ही चीज है या अलग अलग है? ये एक ही चीज है, राइट? फीवर, हाई टेम्परेचर को भी फीवर ही होता है बेसिकली, बट देन बोलते टाइम हमने बोल दिया हाई टेम्परेचर हो रहा है ना, तो एक ही चीज है वो। अब फीवर का एक मेडिकल टर्म भी होता है, किसी को पता है? जो आंसर करेगा उसे एग्जैक्टली पायरेक्सिया। रात सर चॉकलेट आपके लिए भेजूंगी मैं आपको। तो पायरेक्सिया इज द टर्म, मेडिकल टर्म विच इज यूज्ड फॉर फीवर। अब मान लो कि हम ये कोडिंग ना करें, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें कोडर्स की जरूरत होती है, मेडिकल कोडिंग की जरूरत होती है। जो ये टर्म्स हमने सेग्रीगेट करके डॉक्टर ने एज इट इज मेंशन किए थे, फीवर, हाई टेम्परेचर, हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर, हाई फीवर, everything boils down to only one thing, that is fever, and fever has a medical terminology which is known as pyrexia. अब मान लो हम कोडिंग ना करें तो हमें क्या डिफिकल्टी होगी, जैसे ही रेगुलेटरी अथॉरिटीज हमसे रिपोर्ट मांगेंगे और बोलेंगे कि फीवर के कितने केसेस देखे, इट वुड बिकम डिफिकल्ट फॉर अस टू गिव देम द नंबर ऑफ केसेस। तो हम क्या बोलेंगे, वी हैव सीन 4 केसेस ऑफ हाई टेम्परेचर, वी हैव सीन 6 केसेस ऑफ हाई फीवर, we have seen 3 cases of normal fever, which doesn't give the exact data to the regulatory authorities. तो मतलब क्या है, there is a confusion, डेटा हमारा सही से हम प्रेजेंट नहीं कर रहे। तो वहां पर मेडिकल कोडिंग होती है, मेडिकल कोडिंग से हम ये सारे टर्म्स को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोड करते हैं, एंड जिससे whenever we want to present that data to regulatory authorities, we have the proper numbers with us. Okay, we have seen 40 cases of tonsillitis, we have seen 50 cases of pharyngitis, we have seen 50 cases of pyrexia. आप लोग को समझ में आया मेडिकल कोडिंग कैसी होती है और क्यों होती है? अब मेडिकल कोडिंग में ना, yes Raj sir, you were going to say something. Yes, we understand, ma'am. ओके, तो मेडिकल कोडर भी आप लोग बन सकते हो गाइस। मेडिकल कोडिंग में क्या होता है कि यहाँ पर ना मेनली फार्मेसी वाले बच्चे ज्यादा लिए जाते हैं, क्योंकि दे नो ऑल द फर्स्ट थिंग इज ड्रग टर्म्स, सेकेंड थिंग इज डिजीज टर्म्स भी उन्हें पता होती हैं, कौन सी डिजीज को हम क्या बोलते हैं। तो ये दोनों चीज जब पता होती है तो यहाँ पर उन्हें कोड करने के लिए, ट्रेनिंग सीखने के लिए इजी पड़ जाता है।
तो यहाँ पर फार्मेसी वाले बच्चों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है मेडिकल कोडिंग में। यहाँ पर ओपनिंग्स इतनी ज्यादा नहीं निकलती हैं। अगर आप देख रहे हो बल्क में ओपनिंग्स हो रही, कहीं आपने साउथ में ओपनिंग्स देखी हो, कहीं देखी हो, वो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी में भी हमें कोडिंग करना पड़ता है। जो भी हम अपने फॉर्म सबमिट करते हैं और ये करते हैं, उसके अंदर जो भी डिजीज होती है उनको भी कोड करना पड़ता है उनको। तो वो बल्क ओपनिंग जहां आप देखोगे मेडिकल कोडिंग में, दैट इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस कंपनी या कोई लाइफ साइंसेस कंपनी है जहां पर वो बल्क में कोई डेटा प्रोसेस कर रहे हैं ना। बट दैट इज नॉट क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री। हमारे इंडस्ट्री में वेरी रेयर ओपनिंग्स आती हैं, वो भी मैक्स सीनियर रोल के लिए आती हैं। अगर फ्रेशर के लिए आएगी भी ना तो 3-4 आएंगी, ज्यादा नहीं आती। और आती भी हैं तो वो इंटरनली फिल हो जाती हैं कि किसी के थ्रू आकर किसी ने रेफर कर दिया और ये कर दिया तो वो फिल हो जाएंगी, पर इतनी ओपनिंग देखोगे नहीं आप बाहर। इसके लिए कोडिंग के लिए सीपीसी सर्टिफिकेशन भी मांगते हैं। देयर इज सम सर्टिफिकेशन दैट यू नीड टू डू व्हिच कॉस्ट समवेयर अराउंड 40 to 50,000 रुपीज। नॉट रिक्वायर्ड एवरीवेयर। अगर आप सोच रहे हो कि आप कोडिंग का कोई सर्टिफिकेशन कर लो और फिर जॉब लग जाए, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू डू। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कि आपको कहाँ मूव होना है, देन आप उतना स्पेंड करो सर्टिफिकेशन पे ताकि आपको हेल्प हो सके। वरना सर्टिफिकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि मेडिकल कोडिंग का वो सीपीसी वाला आप करो ही करो। क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में भी ऐसे ही एक सर्टिफिकेशन आता है जिसका कॉस्ट समवेयर अराउंड 20 to 25,000 होता है। ACDM सर्टिफिकेशन होता है वो, तो उसमें भी ये सारे जो सर्टिफिकेशन होते हैं ना, अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर करो, it would be easier for you to crack those certifications and आपकी ग्रोथ, जो इंटरनल ग्रोथ होने वाली है, उसके लिए हेल्प करेंगी। एज अ फ्रेशर डोंट डू दिस सर्टिफिकेशंस। CRA रोल तो मैंने आपको बताया है। देन यू हैव मेडिकल राइटर्स एज वेल। अब मेडिकल राइटर क्या करता है, आपकी जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक आप अभी जो आप पढ़ रहे हो, तो ये कोई नॉर्मल कोई मतलब कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट स्ट्रीम का बंदा तो नहीं लिखेगा बुक, राइट? We need people from the life sciences background, जिनका डॉक्टर बैकग्राउंड या लाइफ साइंसेस बैकग्राउंड हो, जिनको वो टर्मिनोलॉजी समझ में आए एंड प्रॉपर वे में वो स्ट्रक्चर कर सके। हमारे कॉलेज और हमने स्कूलों में देखा होगा कि कोई कोई बच्चे होते हैं ना जिनको लिखना बहुत पसंद होता है, वो ऐसे कंपटीशन और ये सब चीज बहुत, एंड ये डेस्क जॉब है मेडिकल राइटिंग। तो मोस्टली मैंने आज तक मेरे करियर में जितने भी मेडिकल राइटर्स देखे हैं वो मेनली फीमेल्स देखे, मेनली फीमेल्स। बॉयज को मैंने बहुत रेयर देखा है कि वो मेडिकल राइटिंग में घुसते हैं, क्योंकि वो डेस्क जॉब होता है एंड फीमेल्स के लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि एक जगह बैठ के काम करके उनका बहुत सारी चीजें होती हैं और भी मल्टीपल काम होते हैं, वो खत्म करती हैं। बट मेडिकल राइटिंग इज ऑल्सो अ गुड स्कोप। क्लिनिकल रिसर्च के जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, योर प्रोटोकॉल, योर इन्फॉर्म कंसेंट, योर रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट करने वाला, जो हमारा लास्ट में हम सबमिट करते हैं एक रिपोर्ट होती है जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट, CSR, वो लिखना प्रॉपरली, वो सारा काम मेडिकल राइटर का होता है। तो उनको प्रोटोकॉल दे दिया जाता है, जितना भी हमने डेटा कलेक्ट किया है ना उसकी एनालिसिस होती है फाइनली। आप लोग ने न्यूज में भी देखा होगा कि जब हम कोई चीज कभी न्यूज में आती है तो उधर लिखा होता है कि एज पर स्टैटिस्टिकल डेटा इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोग जख्मी हो गए, इतने लोग, राइट? स्टैटिस्टिशियंस का काम ही वो होता है। हमारे क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में भी स्टैटिस्टिक्स का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही नीश स्किल है ये। कि अगर जो किसी को एक्चुअल में बहुत पसंद है स्टैटिस्टिक्स, मुझे नहीं पसंद था, मैंने नहीं लिया वो कोर्स, मुझे समझ ही नहीं आता था स्टैटिस्टिक्स। बट देन अगर जो आपको रियली वो वर्ड्स और वो सारी चीजें पसंद है, गो इनटू दैट स्टैटिस्टिक्स फील्ड। आप एक फील्ड में नहीं रहोगे, फिर आपको जंप भी मारना है ना कोई और फील्ड में, आप यू कैन चेंज योर फील्ड, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हर जगह जरूरत है, एंड स्टैटिस्टिक्स जब आप करते हो, अब स्टैटिस्टिशियन का हमारे क्लिनिकल रिसर्च में क्या रोल प्ले होता है, वो ना फार्मा कंपनी को फ्रॉम द स्टार्ट डे 1 से हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्लिनिकल रिसर्च में कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स लेने हैं, ट्रायल कितने महीनों के लिए या कितने सालों के लिए चलेगा, ट्रायल में हमें कितने दिन तक पेशेंट्स को बुलाना है, कितने नंबर ऑफ विजिट्स होंगे, उसमें हमें कौन कौन से टेस्ट क्या क्या टाइमिंग पे करने हैं, डेटा एनालिसिस कब कब करना है, जब भी डेटा एनालिसिस होगा तो उस टाइम पे कौन सा मेथडोलॉजी वो यूज करेंगे एनालिसिस के लिए,
एंड अल्टीमेटली फाइनली भी जो पेशेंट डेटा होता है वो एनालिसिस स्टैटिस्टिशियंस ही करते हैं हमारे इसमें। वो एनालाइज करते हैं कि जो हमारा स्टडी का ऑब्जेक्टिव था वो हमने मीट किया है कि नहीं किया है, और हमारा जो पेशेंट डेटा है उससे हमें ये पता चल रहा है कि नहीं कि हमारा पेशेंट डेटा जो हमारा मेडिसिन है वो सेफ और इफेक्टिव है या नहीं। वो डेटा स्टैटिस्टिशियंस देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टैटिस्टिक्स भी, वेरी नाइस रोल आई वुड से। मेडिकल राइटिंग भी सेम बहुत ही नीश स्किल है, हर कोई नहीं करता। इफ यू गेट अ अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन समवेयर एज एन इंटर्न और ना कि कहीं पर ज्वाइन करके आप सीख सको मेडिकल राइटिंग, ये भी बहुत ही अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो ये दो जो मेडिकल राइटिंग है, मेडिकल कोडिंग है, मेडिकल और स्टैटिस्टिक्स है, ये आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। मेडिकल राइटर्स भी सिर्फ बुक नहीं लिखते, टेक्स्ट बुक्स नहीं लिखते, they do writing of the documents, they do this पोस्टर, बैनर्स, मार्केटिंग के लिए जो पैम्पलेट्स बनते हैं, बुकलेट्स बनते हैं, वो सब जगह भी मेडिकल राइटर्स का काम आता है। एनी क्वेश्चंस? Ma'am, if anybody want to get a job in WHO, so WHO, okay. so अच्छा, how अब can we get that? सो श्रेया, अभी तक WHO तक तो मैं नहीं पहुंची थी, बट देन वर्ल्ड कोई भी कहीं पर भी आपको जॉब चाहिए तो पहले तो आप थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करो, ठीक है। ये देखो कि WHO में कैसे कैसे रोल्स रिलीज होते हैं आपके लिए, क्योंकि फार्मेसी ऑब्वियसली वो ड्रग रिलेटेड, लाइक हमारे हेल्थ रिलेटेड ही ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर जो ओपनिंग्स आती हैं उसमें क्या क्राइटेरिया होता है उनका, जिस वे में वो लोग हायर करते हैं, पहले तो वो देखो कि क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है उनका, कि उनको बीएससी ग्रेजुएट चाहिए, बीफार्म ग्रेजुएट की ओपनिंग ज्यादा आ रही है, नहीं आ रही है, कोई सर्टिफिकेशन मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, वो देखो। एंड देन उसके बाद में फिर आप देखो कि हाँ, आपका अगर एम WHO में ही एंटर करना है, देन यू डिसाइड कि अच्छा अब ये लोग की जो क्राइटेरिया है, ये सारे सर्टिफिकेशन मांगते हैं, डू दो सर्टिफिकेशन, by the time do some kind of job which will give you an added advantage, and साथ में WHO में अप्लाई करते रहो। Okay, thank you, ma'am. और अगर जो आपको क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में आना है तो आप जो भी अपॉर्चुनिटीज देखते हो लिंक्डइन पे या कहीं पर भी क्लिनिकल रिसर्च रिलेटेड, तो बीफार्म, बीएससी, एमएससी ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही अच्छी फील्ड है जो लोगों को पता नहीं होती आज के डेट में। एंड वहां पर भी आप ओपनिंग्स में देखोगे जहाँ पर कि योर क्लिनिकल रिसर्च सर्टिफिकेशन वुड गिव यू एन एडवांटेज, अगर जो आपने किया होगा तो। अभी एडवांटेज क्यों मिलता है? क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ना ट्रेनिंग टाइम खत्म हो जाता है। फिर ट्रेनिंग जो आप लोग को मिलती है ना, एक स्किल्ड कैंडिडेट को ट्रेन करना और एक फ्रेशर को कैंडिडेट को ट्रेन करना, इट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। जिसको जो कोई नॉलेज नहीं है उसको ट्रेन करने में मुझे 6 महीने लग जाएंगे, बट किसी को बेसिक नॉलेज है किसी चीज की, उसको मुझे ट्रेन करने में 2 से 3 महीने लगेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक, हु दे विल हायर? The experienced one. Skilled person, right? So guys, just 2-3 years back I started with this particular institute, which is an online institute. You can join from from anywhere. It happens on Google Meet, it happens on Zoom. There is a basic certification program which starts from 2499 only for students, and जिसमें आपको एक्सपर्ट आते हैं, इंडस्ट्री से आते हैं, आपको ट्रेन करते हैं, आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है। एंड ये बीएससी नर्सिंग, एमएससी, एमफार्म, बीफार्म हर कोई कर सकता है, इवन समवन हु हैज लेफ्ट। अभी हमारी क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में एक और चीज़ क्या हुई है कि रिमोट जॉब्स भी आने लग गए हैं। आफ्टर कोविड रिमोट जॉब्स स्टार्ट हो गए हैं आना। नॉट एवरी कंपनी वुड गिव इट टू यू, सम कंपनीज आर वर्किंग ऑन हाइब्रिड मॉडल कि 2 days आपको ऑफिस जाना है, 3 दिन घर बैठ के काम करना है। तो वो चीज़ भी आ गई है जिससे लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। तो ऐसे जॉब्स भी मिलते हैं। एंड आप you can do this particular course. Basic certification,
it is a 1 month course. It starts from 2499. If you want a very specific job oriented course ki jahan par hum aapko job support de, then there is an advanced course for which you can contact us on our number. एंड अलग अलग जो बेसिक सर्टिफिकेशन है ना, उसमें हम आपको ओवरव्यू देते हैं पूरा कि क्लिनिकल रिसर्च में सारी टीम्स कैसे वर्क करती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, एंड ये बेसिक सर्टिफिकेशन भी आपको हेल्प करेगा इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए. So with this, I finished the particular topic, which is our clinical research. Any questions or anything that you thought of, कि आप सीखने आए थे और आपने नहीं सीखा? Please ask your doubts or questions. Please go ahead. Good morning, ma'am. Very nice presentation, and I hope all the wards of our college will be benefited with this presentation. And the way you have presented A to Z in very, I would say, easy language. My question, ma'am, is what are the new avenues or new job roles apart from the popular ones are coming up, or are the designations? Because sometimes students search at Google, at LinkedIn, at various search engines, but beyond the curriculum and beyond the knowledge available, what are the new dimensions which are coming, which have been come up in the last 2 years or are going to come up? Okay. जो मैंने अभी लेटेस्ट 2-3 दिन पहले देखा था वो था एथिक्स कमिटी कोऑर्डिनेटर. ओके, सो हमारे एथिक्स कमिटीज में भी दे नीड कोऑर्डिनेटर्स हु आर हेल्पिंग द कमिटी पीपल टू हैव द प्रोजेक्ट्स ऑन देयर बोर्ड, टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, अप्रूवल देना, नोटिफिकेशन करना साइट को, वो सारा रोल वहाँ पर जॉब रोल्स होता है. उसके साथ में ही वी हैव रेगुलेटरी एसोसिएट रोल, वी हैव अब जहाँ पर भी आप एसोसिएट और असिस्टेंट का जॉब देखोगे ना, वो सब फ्रेशर के लिए. ठीक है. सौरभ, इफ यू डोंट माइंड, इफ यू कैन जस्ट बी वेरी स्पेसिफिक, आप क्लिनिकल रिसर्च का पूछ रहे थे या फार्मेसी का पूछ रहे थे? Madam, I was asking about the CROs and specifically from core clinical domain students जहाँ पर जाते हैं. राइट, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं सौरभ. तो इसमें मेडिकल कोडिंग एनालिस्ट हो गया, आपका सेफ्टी एसोसिएट हो गया या सेफ्टी एनालिस्ट हो गया, क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट, क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर. अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं आज के डेट में सौरभ, क्योंकि रोल्स के नाम अलग अलग होते हैं. अब रोल्स के नाम अलग अलग होते, सारी कंपनियों ने अपने अलग अलग, काम सेम है बट नाम अलग अलग दे दिया. जैसे मैं टीसीएस में थी, वहां पर हमारा नाम था डेटा मैनेजर, बट जैसे ही मैं आईक्यूविया या कोई और कंपनी में जाती, वहां पर क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट रोल था. आइकॉन में जाती तो क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर रोल था. तो रोल्स अलग हो जाते हैं बट वर्क रिमेन्स द सेम, वो चेंज नहीं होता. आप सीनियर हो जाओ या जूनियर हो जाओ. अभी 10 साल एक्सपीरियंस वाले भी, जब मैं एक्सेंचर में थी और काम लोड इतना था, हम यूएटी भी करते थे ना, मतलब टेस्टिंग भी करते थे डेटाबेस का. अब मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी मैं टेस्टिंग कर रही हूँ. तो उसमें रोल डिफरेंट नहीं होता. अब जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीट करते जाओ, आपके डेजिग्नेशन चेंज होते जाते हैं, एंड काम मोस्टली शायद आपको 10 साल बाद में भी सेम काम दे, पर क्योंकि आपका प्रमोशन हुआ है तो आपका वो चीज बढ़ती जाएगी. पर फॉर अ फ्रेशर गाइज, टू बी वेरी स्पेसिफिक, जहां पर भी आप कोऑर्डिनेटर, एनालिस्ट या एसोसिएट देखते हो कोई भी रोल में, दोज रोल्स आर स्पेसिफिकली फॉर फ्रेशर्स. Agreed. Thank you, Rashmi ma'am. Thank you. या सौरभ, मैं एक जोक बताती हूँ इससे रिलेटेड. जब हम टीसीएस में थी, एक क्लिनिकल डेटा मैनेजर का हमारा रोल था रहे, तो उस हाल ही में ही 3-4 लोगों की शादी हुई, लड़कों की. ठीक है. अब रोल का नाम था डेटा मैनेजर. अब जब वो लड़की से मिलने गए तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो डेटा मैनेजर हूँ. तो उनको लगा कि अरे मैनेजरियल पोजीशन होगी कोई, एज अ फ्रेशर इन्होंने फार्मेसी और में से किया हुआ है, कोई बहुत अच्छा मैनेजर रोल है. और उनकी शादी वादी हुई, फिर वो आए. मैंने बोला यार अभी तो तुमने ज्वाइन किया, अभी शादी का भी कैसे सोच लिया? मैम ऐसी ही चल रही थी घर पे बात, लड़की भी पसंद आ गई और हमने बोला डेटा मैनेजर हैं,
तो उन्होंने सोचा मैनेजर हैं तो चलो कर लेते हैं शादी, जबकि उनकी सैलरी दे जॉइन समवेयर अराउंड 18-20 के सैलरी पे ही ज्वाइन हुए थे। बट देन वो मैनेजर रोल सुन के ही एक उनको एक जो कन्विक्शन रहता है आना कि या एकदम इन अ प्रिविलेज माइंडसेट आता है कहीं ना कहीं, राइट राइट। फनी। तो मैनेजर, तो ऐसे भी चीजें होती हैं। Thank you so much, ma'am. It was Yes. very lovely presentation, and I hope everyone learned a lot here. So now I would like to invite Dr. Khadgaraj Aaron to say a few words. So, good afternoon to respected director, sir. Today's expert, Rasmi ma'am, HOD sir, all faculty members. It's a matter of great privilege to express thanks and appreciation to Rasmi ma'am for your excellent and informative lecture on Behind the Lab Code, Exploring the Career in Clinical Research. Ma'am has talked about the different job option in clinical research. She also explained about there are many roles outside the lab and so the how people can different backgrounds can work in the clinical field. Especially, she has focused on the effects of various drug in our body, and she also talk about the clinical trials, clinical study, and some guidelines regarding the CDSCO, ICS, GCP, pharmacovigilance. Her valuable knowledge and clear explanations are very helpful for our pharmacy students and faculty members. So I am very truly appreciate her time and effort in helping our students, faculty members who are joining online and offline mode in the clinical research work and what skills are needed for the future betterment. So we also look forward working together in the future and hope we will do some collaborative work with the SSCRI Private Limited. So these collaborations will help to our students learn about the clinical research industry and clinical field. So thank you once again for your kind support and guidance. Thank you so much, ma'am, for your this valuable lecture. Thank you so